Good morning students. Now today we are going to see another lecture, that is the lecture number 11. In this lecture we will see about another topic, that is the constraints on binary relationship type. Now in this we are having the relationship type. When we say about the constraints on binary relationship type, we are having the relationship which are having certain types of constraints. Now these constraints are actually the combinations of entities, and they limit that only these entities or these types of entities will only participate in a relationship set. So what happened when we say about the relationship types, about the constraint, then relationship types have certain constraint. These constraints limit the combination of entities that may participate in a relationship set. For example, if I demonstrate the concept of constraint, now if we are having the company database, you remember that we were discussing the example of company database right from the beginning. If in company database, if the company has a rule that each employee must work for exactly one department. That means what does the rule says? That every employee, each employee must work for exactly one department. It is a constraint. It is a constraint. It is a rule or restriction, and it is needed to be specified in the schema. So what does the constraint means? The rule or the limitation or the simple concept that says that this is the restriction that is being taken, then it becomes the constraint. Now when we say about the constraints, we are having the two types of constraint. The first one is the cardinality ratio and the second one is the participation constraint. What happens in the cardinality ratio? The cardinality ratio is actually a representation of binary relationship which specifies that how many maximum number of relationship instances that an entity can participate in. कहने की बात क्या है? Cardinality ratio बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर ये स्पेसिफाई करता है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है. दैट मीन्स कितने रिलेशनशिप एंटिटी बना सकती है. दैट इज द डिनोशन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, दैट इज कार्डिनलिटी रेशियो. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कार्डिनलिटी रेशियो बाइनरी रिलेशनशिप के लिए होता है, और वो क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 1:1, 1:n, n:1 और m:n. That means these are the four different types of values that the cardinality ratio between the binary relationship which is being formed by two entities can define. Now for example, if we discuss the concept in a more defined manner, then we say that in the works for binary relationship type, a department and employee is having the cardinality ratio of 1:n. That means if works for is a relationship type between the department and the employee binary and relationship, then it is having the cardinality ratio of 1:n. 1:n means that employee department can have any n number of employees. So this is the simple example that says about the cardinality. That means if we say about this example, it says that each department can be related to any number of employees, that is n number of employees, but an employee can be related or employee can work at most one department. So this cardinality ratio to n simply describe that each department can be related, that is each department can employ any number of employees, that is n number of employees, but an employee can be related or employee can work at most one department only. So what does it suggest? This suggests that for relationship type works for a particular department entity can be related to any number of employees, that is n indicate there is no maximum number. So this is the simple case that describes, that defines about the entity types. Now there is one important point to note, that an employee can be related to maximum of one department. हमने क्या कहा? इस केस में हमें ये पता चला कि एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट पे रिलेट हो सकता है. इसलिए कार्डिनलिटी क्या हो सकती है? 1:1 हो सकती है, 1:n हो सकती है, n:1 या m:n की हो सकती है. तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर
for a binary relationship set, the cardinality ratio must be one of the following type. It could be 1:1, 1:many, many to one और many to many. दैट मीन्स हमारे पास कार्डिनलिटी रेशियो देखें तो न्यूमरल वैल्यूज में इस तरीके से लिखी जाती हैं और अगर सिंपल वर्ड्स के फॉर्म में देखें तो कार्डिनलिटी रेशियो 4 टाइप्स की होती हैं 1:1, 1:many, many to one और many to many. अब अगर हम इन्हीं चारों कार्डिनलिटीज को फिगर के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला केस हमारा 1:1 का है. We are having this 1:1 type which says that we are having the two entity types, that is entity A and entity B. It is having the entity instances or the entity elements, that is A1, A2, A4, while the entity B is made up of B1, B2, B3 and B4. Now if you see, it is a case of 1:1. Why it is a case of 1:1? Since every element of A is associated or related with every other element of the B. अगर A के पास 4 एलिमेंट हैं तो B के पास भी 4 एलिमेंट है और A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और एक एलिमेंट ही एक ही एलिमेंट से जुड़ा है. ऐसा नहीं है कि A1 इज रिलेटेड टू B1 ऑल्सो एंड A1 इज रिलेटेड टू B2 ऑल्सो. इसका मतलब A1 सिर्फ B1 से ही रिलेटेड है, A2 सिर्फ B2 से ही रिलेटेड है. ऐसा कार्डिनलिटी रेशियो का केस फर्स्ट केस होता है जिसको कि हम 1:1 टाइप कहते हैं. अब हम अगर सेकंड केस देखें 1:many का, 1:many में क्या है, हमारे पास यहाँ पर भी कार्डिनल एंटिटी है A और एंटिटी है B. इस एंटिटी सेट के एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, इसके हैं B1 से लेके B5 तक. आप देख सकते हैं 1:many हमें ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड का एंटिटी के एलिमेंट एक से ज़्यादा एंटिटीज के एलिमेंट राइट हैंड साइड से जुड़े हैं. दैट इज 1:many. वन एलिमेंट ऑफ A is associated with two element of B, that is B1 and B2. इसी तरीके से A2 के एक एलिमेंट है सेट A का A2 जो कि दो एलिमेंट ऑफ सेट B से जुड़ा है B3 और B4. इसी तरीके से A3 एक ही से जुड़ा है B5. तो ये कंडीशन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि एक ही एलिमेंट एक ही से जुड़ा होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसीलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे A1 आपने देखा B1 B2 से जुड़ा, A2 B3 B4 से जुड़ा, लेकिन A3 एक से ही जुड़ा है. तो हमारे पास अगर मान लीजिए इस A सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते तो उसमें से कुछ तो डबल भी शो कर रहे होते और कुछ सिंगल भी होते या फिर कुछ ऐसे होते जो ज्वाइन भी नहीं होते. तो ऐसे केसेस को हम 1:many कहते हैं. 1:many मतलब ज़्यादातर एलिमेंट सेट A के एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट B के साथ जुड़े हुए होंगे. This is the case demonstrating about the simple 1:2. We are having the third case. What does the third case says? That we are having many to. What does the many to one says? That again we are having the set A and set B with the element A1 A5 up to A5 in set A and B1 to B3 in set B. अगर हमारे पास दो एलिमेंट सेट A के एक ही एलिमेंट ऑफ सेट B से जुड़ रहे हैं या एक एलिमेंट एक से सेट से जुड़ रहा है एलिमेंट ऑफ सेट बी के या एक से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, many to one कहलाता है. So this is the example that clearly describes about the third category of cardinality ratio, that is many to one. Similarly we are having fourth type many to many. इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट A के बहुत सारे एलिमेंट ऑफ B से जुड़े होंगे. That is A is associated with B1, A is associated with B2, A2 is associated with B2 and A3 is associated with B3, A3 is associated with B4, A4 is associated with B3. तो कहने की बात क्या है, many elements of set A are associated with many elements of set B. So this is the fourth category of cardinality ratio, that is many to many. Clear? Now if we see one case about the cardinality ratio. Case first, what does it say? अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है 1:1 का, if we are having the binary relationship 1:1, रिलेशनशिप इज मैनेजेस. नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि 1:1 का रिलेशनशिप है मैनेजेस का, जो कि आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे इंस्टेंसेस हैं, डिपार्टमेंट के अंदर 3 ही हैं और मैनेजेस के अंदर भी 3 हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय का इंस्टेंस, हर से मतलब 3, वो हर डिपार्टमेंट से जुड़ा है क्योंकि डिपार्टमेंट में 3 हैं लेकिन एम्प्लॉय में बहुत सारे हैं. तो इसका मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट का इंस्टेंस एक एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय से जरूर जुड़ा हुआ है. कहने की बात क्या है, 1:1. E3 इज रिलेटेड टू D1, E5 is related to D3 and E6 is related to D2. तो एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जरूर है. ऐसा केस हमारे पास जो है केस फर्स्ट, हमारा यही बाइनरी रिलेशनशिप को बता रहा है.
इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चला, 3 पॉइंट पता चला कि जब भी हमने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में देखा तो एम्प्लॉय कैन मैनेज एट मोस्ट 1 डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट कैन हैव एट मोस्ट 1 मैनेजर। तो हमें इस फिगर, लेकिन हमारे पास उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि डिपार्टमेंट के पास एक मैनेजर जरूर हो, एम्प्लॉइज हैं उनमें से एक मैनेजर हमारे पास काम जरूर करेगा। तो ये क्या बात हुई, इसने हमें बताया कि रिलेशनशिप मैनेजेस है जिसके अंदर इस तरीके से डिफाइन किया। अब अगर हम एक नया केस देखें, केस 2, जिसकी की स्लाइड क्या है आपके पास, ये है। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप क्या है, M/N का है, जो कि वर्क्स ऑन बिटवीन एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में है। तो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू वर्क्स ऑन विद द प्रोजेक्ट। अब यहाँ रिलेशनशिप कैसा है, मैनी टू मैनी का। तो इसका मतलब एक एम्प्लॉय अगर आप देखें E1 P1 में काम करता है, अच्छा उसके बाद E2 भी P1 में काम करता है। तो इस प्रोजेक्ट P1 में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इसी तरीके से E2 जो है P4 में भी जुड़ा हुआ है और P4 जो है E3 से भी जुड़ा हुआ है। तो E2 और E3 इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कहने की बात क्या है, मेनी एम्प्लॉयज आर रिलेटेड टू मेनी प्रोजेक्ट, सिंपल केस दैट डेमोन्स्ट्रेट। तो इस फिगर में हमने क्या देखा कि रिलेशनशिप टाइप वर्क्स ऑन इज रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ M/N because the many word rule says that an employee can work on several project and project can have several employees। तो M/N का मतलब क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और प्रोजेक्ट के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अब अगर हम ER डायग्राम के अंदर देखें कि किस तरीके से कार्डिनलिटी रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कार्डिनलिटी रेशियो बाइनरी रिलेशनशिप में के लिए ER डायग्राम में डिस्क्राइब करी जाती है डायमंड सिंबल के ऊपर 1M और N सिंबल्स लिख के। डायमंड सिंबल किसका होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उस पे हम 1M, कैपिटल M या कैपिटल N को रिप्रेजेंट करेंगे। इस नोटेशन में हम नंबर ऑफ मैक्सिमम को N से डिनोट करते हैं और एक सिंगल लें तो वो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड होता है। तो स्कीमा डिजाइनर कैन स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कैन बी 4 और 5। तो कई बार हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन 4 और 5 तक हमारे पास हो सकते हैं। This is the simple representation inside in the ER tag. Now second important point to discuss is participation constraint and the existences dependency। हमने क्या कहा था, हमारे पास 2 तरीके के constraint होते हैं। पहला होता है cardinality ratio जो कि हमने अभी देखा, और नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेशन का कॉन्स्टेंट। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट ये बताता है कि कौन सी एंटिटी किस तरीके से दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करती है, रिलेट करती है। दैट मीन्स द पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट डिफाइंस वेदर द एंटिटी डिपेंड्स ऑन बीइंग रिलेटेड टू अनदर एंटिटी बाय अ रिलेशनशिप टाइप। सेकेंडली, इट स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस It specifies the minimum number of relationship instances that each entity can participate in। तो मिनिमम मतलब मिनिमम कार्डिनलिटी कांस्टेंट क्या होगी, ये हमें पार्टिसिपेशन बताता है। अब पार्टिसिपेशन कांस्टेंट 2 टाइप का होता है, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो टोटल पार्टिसिपेशन कैसे डिफाइन होता है, देखिए अगर कंपनी की पॉलिसी कहती है कि हर एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट में काम करेगा, तो इसका मतलब एम्प्लॉय एंटिटी कैन एग्जिस्ट ओनली इफ इट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 1 डिपार्टमेंट दैट इज वर्क्स फॉर। सो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन वर्क्स फॉर इज अ टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, हमारी पॉलिसी क्या कह रही है, हर एम्प्लॉय काम करेगा डिपार्टमेंट में। सो दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन। It means every entity in the total set of employees must related to department entity via works for। अगर इसका मतलब क्या है कि जितनी भी एंटिटी होंगी और उनके अंदर जितने भी सेट ऑफ एंटिटीज होंगे एम्प्लॉयज के, वो सारे के सारे वर्क्स फॉर से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होंगे। तो टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन को इसलिए हम कई बार एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अब आता है दूसरा पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास इफ वी डू नॉट कंसीडर दैट एवरी एम्प्लॉय इज टू मैनेज अ डिपार्टमेंट, हमने वहां पे कंसीडर किया था कि सारे एम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इफ वी डू नॉट कंसीडर दैट एवरी एम्प्लॉय मैनेजेस अ डिपार्टमेंट
then participation of employee in the manager's relationship is called as the partial participation. तो सेकंड टाइप का क्या होता है, पार्शियल, जिसमें हमने कहा कि सारे नहीं करेंगे लेकिन कुछ करेंगे, लेकिन सारों की कंडीशन, सारों का रूल हमने नहीं बनाया है, तो ये हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा. That means some or part of set of employees entities are related to some department entity via managers, but not necessarily all. So this is the second type of constraint, that is partial participation constraint. Now if we are going to represent these two types of constraint in ER diagram, so the total participation is displayed as a double line connecting the entity type of the relationship. अगर हम डबल लाइन को रिलेशनशिप टाइप और एंटिटी के बीच में यूज करते हैं तो वो टोटल पार्टिसिपेशन को बताता है, जबकि पार्शियल पार्टिसिपेशन हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कार्डिनलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट को अगर हम टुगेदर देखें तो वो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट से डिफाइन किए जाते हैं रिलेशनशिप टाइप के, या यूं कहिए कि वो रिलेशनशिप टाइप का स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स को बताते हैं. इसीलिए हम नो मिनिमम या तो पार्शियल को डिनोट करते हैं या टोटल को डिनोट करते हैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर. अब अगर हम अपना स्कीमा डायग्राम देखें तो हमारे पास इस स्कीमा डायग्राम में ये एंटिटीज हैं, ये इसके एट्रीब्यूट हैं, ये इसके रिलेशनशिप हैं, और यहाँ पे ये एंटिटी है डिपार्टमेंट की और प्रोजेक्ट की. तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट बाय द वर्क्स फॉर, और यहाँ पे ये हमने उसके कार्डिनलिटी रेशियो लिखे हैं, दैट इज n:1. तो पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि हर एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम जरूर करेगा, तो n:1 की कार्डिनलिटी हमारे पास यहाँ पर है. अब वर्क्स फॉर और डिपार्टमेंट के बीच में देखें तो डबल लाइन है. डबल लाइन से जुड़ा होने का मतलब टोटल पार्टिसिपेशन होगा कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट, बहुत सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में तो एटलीस्ट काम करेगा ही जरूर. तो दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट. ऐसे ही और भी जगह आप टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट को इस ईआर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. इसीलिए हमारे पास अब अगर हमने अल्टरनेटिव मिन मैक्स नोटेशन लें तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे पास हर पार्टिसिपेशन एंटिटी एक पार्टिसिपेशन के कॉन्स्टेंट को स्पेसिफाई करेगी. कहने की बात क्या है कि जितनी भी पार्टिसिपेशन होंगे या तो वो मिनिमम को शो करेंगे या मैक्सिमम को शो करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो मिनिमम कंडीशन 0 होगी, मैक्सिमम हमेशा n होगा, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मिनिमम ग्रेटर तो 0 होगा लेकिन और मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 होगा, और ये मिनी वर्ड से डिफाइन होगा. तो कहने की बात क्या है, अगर मैं डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल फिर से देखता हूं तो डिपार्टमेंट हैज एग्जैक्टली 1 मैनेजर एंड एन एम्प्लॉय कैन मैनेज एट मोस्ट 1 डिपार्टमेंट. हमने यही कहा था. इसका मतलब अगर मैं उसको कार्डिनलिटी से या स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट से डिफाइन करूं तो स्पेसिफाई 1:1 फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजेस. कहने की बात यह है कि 1:1 का मिनिमम कंडीशन होगी तभी वो डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा. अगर हम स्पेसिफाई करें 0:1 को, 0:1 मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजेस का मिनिमम और मैक्सिमम 0:1 है. 0:1 मतलब कि एक बार तो एक एम्प्लॉय, ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय हो लेकिन मैनेज जरूर करेगा वो किसी भी डिपार्टमेंट को, दैट इज बीइंग स्पेसिफाइड बाय 0:1. इसी तरीके से अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं तो वो मुझे बताता है कि एम्प्लॉय कैन वर्क फॉर एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट बट डिपार्टमेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. That means it is specified 1:1 for participation of employee in works for, and if I take 0 to n then it specifies the participation of department in the works for. So this is the simple specification that we have taken for the minimum and max notation in the relationship structural constraint, which is being formed by the combination of cardinality and participation constraint. So this is the simple representation of the term. With this, the lecture finishes. We are going to discuss in the next lecture new topic. Thank you.